Assalamu alaikum. आज हम पढ़ेंगे about the first electric lamp and how it was created in 1705. But we all know that Thomas Edison created the first lamp. How can this lamp be created by Hawksby? In this video, we're going to learn about these events and we're going to start from an unfortunate king, a mean boss, an abused assistant, the first static electricity machine, and an influential experiment. So let's get started. In 1649 there was this king Charles the First, और ये किंग ऑफ इंग्लैंड था. इसका ना सर काट दिया था लोगों ने बिकॉज उस वक्त की एक पार्टी थी जो प्रोटेस्टेंट्स ने मिलकर बनाई थी एंड दे वर कॉल्ड द प्योरिटन्स. और प्योरिटन्स जो थे ना दे वर अपसेट एट चार्ल्स द फर्स्ट बिकॉज दिस गाय डिसाइडेड टू डिजॉल्व द पार्लियामेंट. तो लोग कहते प्योरिटन दे वर लाइक रियली एंग्री और उन्होंने क्या किया ही दे एक्चुअली beheaded him और उसका सर काट के उन्होंने फेंक दिया. एंड देन व्हाट हैपेंड वाज कि उसका चार्ल्स द फर्स्ट का बेटा जो था ना चार्ल्स द सेकंड ही रैन अवे टू फ्रांस. और फिर इसके बाद 11 साल बाद जब प्योरिटन्स डिफीट हुए then Charles II came back to England and he was made the king of England. अब वो आते साथ ना उसने कहा प्योरिटन्स के जो रूल हैं they're literally restricting everything. That's why what I'm gonna do is I'm gonna undo all the restricted rules that were made by the Puritans. तो उसने आते साथ बहुत सारे रूल्स को वापस ले लिया एंड वाज लाइक अच्छा भी करना है तो कर सकते हो जॉब कर लो सब कुछ कर लो. एंड देन व्हाट ही डिड वाज ही सपोर्टेड आर्ट्स एंड साइंस. अच्छा और उसने ना ही एट दैट टाइम कहते हैं ही स्टार्टेड अ साइंस क्लब that is known as the Royal Society. And what happened was कि in 1687 इन्होंने रॉयल सोसाइटी ने आइजैक न्यूटन के साथ मिलके प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका पब्लिश की. जब ये बुक लॉन्च हुई ना people were crazy about this book. People went totally crazy about this book. They were like, wow, this is high quality. This is literally revolutionary. So people were like highly pleased with this book. और इस बुक की वजह से ना आइजैक न्यूटन गॉट हिज फेम जो आज तक हम कहते हैं सुनते आ रहे हैं एंड एवरीथिंग. एंड 25 years के बाद ना आइजैक न्यूटन को प्रेसिडेंट बना दिया गया. एंड देन व्हाट ही डिड वाज कि उसने प्रेसिडेंट बनते साथ उसने कहा आई नीड एन असिस्टेंट. So what he did was he hired Hawksby or he checked all of Newton's boxes. He was from a lower class family, he was humble, he was good at demonstration, and he also reminded people that he was unworthy and uneducated. और न्यूटन को इसका ये बहुत ज़्यादा पसंद आ गया एंड ही वाज लाइक ओके यू आर द गाय. और फिर हुआ ये अच्छा तो अब ना न्यूटन नेवर गेव हिम अ गुड सैलरी और वो इस तरह सैलरी देता था कि तुमने अच्छी डिमॉन्स्ट्रेशन की है तो तुम्हें मैं इतने पैसे दे दूंगा, अगर नहीं की तो मैं इतने पैसे दे दूंगा. तो उसको इतने पैसे कभी भी ज़िंदगी में नहीं मिले कि he would like live a luxurious life or anything, but he was like okay I'm good with this life, I love this life because I can do demonstrations and that's like what he wanted all along. अच्छा तो what he did was he took peanuts, literally peanuts as salary. और फिर इन 1703 और हॉक्सबी को ना एक बड़े मज़े की कहानी के बारे में पता चला और वो कहानी थी फ्रांस से. जॉन पिकार्ड दिस गाय, ये जो बंदा था ना दिस गाय ये ना फ्रांस में था और इसके हाथ में ना एक मर्क्यूरी बैरोमीटर था और ये रात के वक्त अंधेरे में जा रहा था ये कहते एक स्ट्रीट में से. तो वहाँ पर इतना अंधेरा था कि कुछ नहीं दिखाई दे रहा था. बट देन व्हाट ही सॉ वाज दैट हिज मर्क्यूरी बैरोमीटर that we learned about in the last video, that mercury barometer started to glow and he was like what's happening. And then what he did was he started to do experiments on this mercury barometer. He carefully shook this mercury barometer up and down and what happened was कि इधर जो एक glow था it glowed, the mercury barometer glowed even more. Like okay I don't know what's happening so I'm just not gonna think about it and I'll just pass my knowledge on to other people. और फिर 25 साल बाद now when Hawksby found out about this mercury barometer and this glow on top he's like what is happening and he was like I need to know what's happening. And then what he did was he produced a reasoning for the glow up top. तो उसे कहा मैं अगर एक mercury barometer लूँ तो ये इतना सिंपल डिवाइस है कि ये बना हुआ है फ्रॉम लिटरली 3 थिंग्स. और वो कौन सी हैं इट हैज़ अ वैक्यूम एंड इट हैज़ ग्लास, जो ग्लास से वो बना हुआ है मर्क्यूरी बैरोमीटर, एंड इट हैज़ मर्क्यूरी. these are the 3 things that mercury barometer contains.
तो अब वो सोचता है कि वैक्यूम से कुछ हो सकता है, अगर मैं मरकरी के बगैर वैक्यूम बनाऊँ तो क्या ग्लो करेगा? कहता है नहीं। अगर मैं ग्लास के बगैर बैरोमीटर बनाऊँ तो कहते तब भी ग्लो करेगा, अगर मैं प्लास्टिक से बना दूंगा। तो उस दो चीज़ें जो थी ना, उन चीज़ों से तो ग्लो निकल नहीं रही थी। उसके ध्यान में आया कि जो थर्ड चीज़ है मेरे पास, मरकरी, आई थिंक दैट्स वाई द मरकरी इज वाई देर इज़ लाइक अ फेंट ग्लो ओवर हियर। तो इसे अच्छा ठीक है, मेरे पास आ गया, पर अगर मरकरी यहाँ पर है तो ग्लो यहाँ पर क्यों बन रहा है? तो उसने इसके बारे में कहा कि द मरकरी वेपर इज द थिंग दैट इज प्रोड्यूसिंग द ग्लो। नाउ व्हाई, लेट्स नाउ लुक एट द व्हाई। अच्छा, ही सेज के लेट्स से यहाँ पर ना हमारा एक सूरज लगा हुआ है, एंड देन वो सूरज की जो एनर्जी है ना वो मरकरी बैरोमीटर पे लगती है। व्हाट हैपेंड इज कि जो मरकरी के जो एटम्स है ना, वो इस रेडिएशन की वजह से, नहीं, जो रेडिएशन यहाँ से आई है इसकी वजह से वो हिलते हैं, हिलते हैं, और इतनी एनर्जी उनको मिल जाती है कि वो वेपर्स बन जाए। ठीक है, जब मरकरी के वेपर बनते हैं ना, तो अगर हम एक मरकरी वेपर लेना और उसके हम एटम में देखें, तो सोचो ये आउटर मोस्ट शेल है और यहाँ पर सोचो एक इलेक्ट्रॉन है। अभी एक इलेक्ट्रॉन को जब और एनर्जी मिलेगी ना, तो ये कहेगा यार मैं एनर्जी में कहाँ लेकर जाऊँ, तो वो क्या करता है, अच्छा, तो वो एक इलेक्ट्रॉन जो है ना उसके पास रेडिएशन फिर से उस सूरज के पास है, क्योंकि वहाँ से तो अनलिमिटेड एनर्जी आ रही है। तो यहाँ से जब एनर्जी और आए ना, तो ये एक इलेक्ट्रॉन कहता है कि यार मैं कहाँ जाके अपनी एनर्जी को ज़ाया करूँ, मैं इतनी एनर्जी संभाल नहीं सकता। तो कहता है कि मैं ऐसा करता हूँ, नेक्स्ट शेल में चला जाता हूँ और मैं यहाँ पर अपनी, कहते हैं, इतनी एनर्जी कंज्यूम कर लूँगा जितनी मेरे पास ये रेडिएशन के थ्रू आई है। तो वो जब कहते हैं अपनी एनर्जी कंज्यूम करने के लिए वो ऊपर वाली शेल में जाता है ना, तो वहाँ पर जाके उसको एक और बात रियलाइज़ होती है उस इलेक्ट्रॉन को। कहता है कि मैं यार इतनी अनस्टेबल जगह पर आ गया हूँ, इतनी अनस्टेबल जगह पर आ गया हूँ कि मैं अब यहाँ पर आके क्या करूँ। वो पागल होना शुरू हो जाता है, इतनी अनस्टेबल जगह पर आ जाता है। तो कहता है अब मैं क्या करूँ, मैं, तो अब क्या करता है वो इलेक्ट्रॉन अपना अपनी जो एनर्जी उसको मिली हुई होती है ना रेडिएशन के थ्रू, वो वही एनर्जी कहते हैं वापस इमिट करता है लाइट के अंदर, और कहते हैं वो वापस अपने इस शेल में आ जाता है। तो कहते हैं जो ये अपनी रेडिएशन इमिट करता है ना, वो हमारी, कहते हैं, ग्लो है जो हमें यहाँ पर दिखती है। तो दिस इज़ वाई द मर्क्यूरी बैरोमीटर ग्लोज। और फिर कहते हैं एक लेट्स डू अ क्विक रिव्यू कि हमारे जो मर्क्यूरी के एटम्स है ना, उनको जब रेडिएशन मिली तो वो मर्क्यूरी वेपर्स बन गए। और मर्क्यूरी के वेपर्स को अगर हम देखें ना, तो उनके जो एटम है, अगर हम एक एटम को लें, मर्क्यूरी वेपर के एक एटम को लें, तो होगा ये कि उसके ऊपर जब एनर्जी पड़ी ना, उसके ऊपर जो रेडिएशन आए, उसने यहाँ पर, कहते हैं, बैठा हुआ था, वो आराम से चिल कर रहा था, पर जब रेडिएशन आई ना तो उसके पास एनर्जी मिल गई। अब उसने कहा मैं एनर्जी को लेकर कहाँ जाऊँ, कहाँ मैं इसको ख़त्म करूँ, मैं इतना अजीब स्टेट में आ गया हूँ। मैं, कहते हैं, अगली वाली इलेक्ट्रॉन शेल में जंप कर देता है, और जो अगली वाली इलेक्ट्रॉन शेल में जंप करता है ना, उसे पता चलता है मैं एक अजीब खड्डे में आ गया हूँ, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो रही है इस शेल में रह के, क्योंकि यहाँ पर इतना वो अनस्टेबल होता है। कहता है अब मैं इस एनर्जी के साथ क्या करूँ। अब जो ये रेडिएशन यहाँ पर आई, अब उसने जो, कहते हैं, यहाँ पर शेल जंप करके गया था ना, तो अब जितनी एनर्जी शेल को जंप करने में लगी थी ना, अब वही एनर्जी वो क्या करता है, वो अपने आप में से रेडिएशन निकालता है बाहर, और वो वापस अपनी स्टेबल स्टेट पे आ जाता है, और ये बार बार होता रहता है। दैट्स वाई वी सी द ग्लो ओवर हियर। अच्छा, तो हॉक्सबी deduced that mercury vapor is the thing that is glowing, और फिर ही डिड हिज ओन सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कि मैं किस तरह इस मर्क्यूरी बैरोमीटर को और अच्छा बना सकूं। तो व्हाट ही डिड वाज कि ही टुक लाइक दिस ट्यूब एंड ही पुट अ स्प्लैश ऑफ मर्क्यूरी इन इट, और उससे सारी हवा बाहर निकाल दी। ही वैक्यूएटेड ऑल द एयर एंड ही शुक इट एंड इट ग्लोड। वो तो डेस्टिन्ड था, पर उसने नया काम क्या किया, उसने ये नया काम किया कि व्हेन ही पुट दैट थिंग ऑन अ स्पिंडल इज़ लाइक अ रोटेस्ट्री, अपनी ये ट्यूब जो थी ना वो यहाँ पर रोटेस्ट्री में लगा दी, और फिर रोटेट होने के लिए लगा दी, और फिर उसने क्या किया कि उसने यहाँ से घुमाया, और जब घुमाया ना तो वो ग्लो करने लग गया। पर उसने जब अपना हाथ ऊपर रखा ना, तो दैट ट्यूब ग्लोड इवन ब्राइटर, इट वाज ग्लोइंग लाइक लिटरली सुपर ब्राइट। इट वाज, ही वाज लाइक व्हाट जस्ट हैपेंड। तो उसने कहा कि व्हाट्स हैपनिंग इज दैट द,
कि मेरे हाथ के जो चार्जेस है ना दे आर गोइंग ऑन टू द मर्करी ट्यूब, और मर्करी ट्यूब जो थी ना उसके स्टैटिक चार्जेस की वजह से ना इट इज़ ग्लोइंग इवन मोर, ठीक। एंड देन व्हाट हैपेंड वाज के 174 ईयर्स के बाद के कमर्शियल लैम्प्स बने, और ये वाले जो फ्लोरेसेंट लैम्प्स थे ना दे एक्चुअली यूज द सेम आइडिया दैट हॉक्सबी यूज इन हिज ग्लो। और फिर इसके बाद we're gonna talk about this first static electricity machine. While creating the first electric lamp, हॉक्सबी ने ना एक first static electricity machine भी बना ली थी, और वो किस तरह, क्योंकि when he used this rotisserie for making the first electric lamp, यहाँ पर उसने अपनी ट्यूब लगाई थी, जब वो एक काम कर रहा था ना और अपना हाथ यहाँ पर रख रहा था, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जितनी इन दो चीज़ों की फ्रिक्शन की वजह से प्रोड्यूस हुई ना वो बहुत ज़्यादा थी, और हमें उतनी स्टैटिक चार्जेस अगर हम दो चीज़ों को रगड़ रगड़ के बनाएं तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, इसलिए ही एक्चुअली क्रिएटेड द फर्स्ट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मशीन। और 40 साल बाद एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड कहते हैं विज़र्ड जो था ना, वो अपने आप को कहता था कि आई एम अ मॉडर्न विज़र्ड, और वो कहते हैं हॉक्सबी की स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मशीन यूज़ करके ना बहुत अजीब व गरीब एक्सपेरिमेंट्स करता था, और उनमें से एक ये था कि वुड यूज़ दिस हॉक्सबीज मशीन एंड ही वुड मेक लिटरली फायर फ्रॉम दिस मशीन। और वो डाइनिंग टेबल पे ना लोगों के रॉयल्स के कहते हैं चमचों कांटों को ना वायर से जोड़ देते थे और बोलते थे तो उनको करंट लगते थे, और एवरीबडी यूज्ड टू गेट सो हैप्पी बिकॉज ऑफ इट। और फिर इसके बाद हॉक्सबी ने अपनी मशीन के साथ क्या किया, हॉक्सबी ने अपनी मशीन के साथ ज़्यादा कुछ नहीं किया, वो बस मेटल स्ट्रिप्स लगाता था आसपास मशीन के, और वो सोचता था अब क्या होगा, इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, और फिर वो दैट वाज सुपर कंफ्यूजिंग, तो उसने बस कहते हैं उसके बारे में छोड़ दिया, एंड 8 years later he died. And this was the story for the first electric lamp and the first static electricity machine. And in the next video we're going to learn about electrical induction, और एक सिंगल फेदर ने किस तरह पूरी कोर्स ऑफ हिस्ट्री को चेंज कर दिया। और अगर हम देखें कि मेरी फर्स्ट वीडियो वाज लाइक स्टैटिक्स कैन ओनली अट्रैक्ट, एंड देन वी लर्न अबाउट स्टैटिक्स कैन ओनली repel, and then we learned about the static machine जो हमने इस वीडियो में पढ़ा, and then we're gonna learn about induction. So it's literally in sequence to the book you're actually reading, जो O levels और मैट्रिक की बुक है। तो हम लिटरली हिस्ट्री को इस तरह लेकर जा रहे हैं कि हम अपनी बुक के इवेंट्स के साथ मैच करते हुए आगे जा रहे हैं, कि हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड पता हो कि यार ये इवेंट किस तरह बना जो आज तक हम पढ़ रहे हैं, ताकि हम अंधाधुंध ना पढ़ें, आगे पढ़ें। So that's it for today, and see you guys in the next video. Allah Hafiz, bye bye.